Good morning, students. Welcome to eKaksha. I am Dr. Sarang Thote. Today we are going to start with the new chapter, that is phase equilibrium. This video is phase equilibrium part 1. In this video we are going to discuss that is what is the meaning of Nernst distribution law. This is a very important from daily life of आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे जहां पर ये नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है ये फॉलो होता है. So before start with the Nernst distribution law, we deals with some basic concepts. First one is, what is the meaning of immiscible liquids? What is the meaning of immiscible liquids? So immiscible liquids refer to liquids that cannot mix. This type of liquids are completely insoluble to each other. In the side video you can see that there is a solution where two liquids are taken. When we shake it, it form a homogeneous layer, but after some times it is again separated to each other. तो इस वीडियो में देखो, आपको बाजू वाली वीडियो में दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन. ये दोनों भी सॉल्यूशन जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं. सो बोथ आर द इमिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल केरोसिन एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, वनस्पति घी एंड वाटर. These are the examples of what immiscible liquids. ये कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है immiscible liquids. Now, today we are going to discuss with what is the meaning of Nernst distribution law. Okay, we are going to discuss what is the meaning of Nernst distribution law. So, before we start with the Nernst distribution law, कुछ बेसिक चीजें समझ लो. यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है? नाउ सी, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है. ओके, इस बीकर में दो सॉल्यूशंस है जो इमिसिबल है. ओके, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा लिक्विड ए and this one is the liquid B. Okay, liquid A and liquid B both are immiscible. That is A and B, ये दोनों भी लिक्विड कैसे हैं? Immiscible liquids है. They are not mixed with each other. Okay, now if suppose अभी मैं इस बीकर में एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल X. मैं क्या करूंगा, अभी X वाला जो सोल्यूट है मैं इसमें ऐड करने वाला हूं. अभी what is the property of this X is known as a solute, and property of this X is what? It is a soluble in both. That means soluble in A also and soluble in B also. In both the cases, these are the solubles. When we add X into it, it get distributed. Okay, यहाँ भी कुछ जाएगा और यहाँ पर भी कुछ जाता है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ड्यूरिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कुछ x जो होते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम B टू E मूव होंगे, और कुछ x जो होंगे वो A से B तक ट्रांसफर हो जाएंगे. कुछ इस टाइप से ट्रांसफर होगा और लेटर ऑन यहाँ पर डायनामिक फॉर्म हो जाएगा. डायनामिक यानी क्या, सपोज B से 2x A के पास चले गए, उसी समय A से B 2x नीचे आएंगे. दिस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, ये बेसिक रहेगा बिकॉज यहां से आपको मिलेगा नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, समझ में आएगा? फिर से एक बार देखो. इन अ बीकर आई एम टेकिंग टू लिक्विड्स व्हिच आर द इमिसिबल टू ईच अदर. वन इज द A, अदर इज द B. आफ्टर दैट I am adding X solute into that. The property of X is what? X is soluble in A also, it is soluble in B also. So that due to this property, some of the X is soluble in A, some of the X is soluble in the B. During the same time, some of the X from B solution, B liquid, it is a move towards a liquid. Like that, some of the X solute from the A liquid move to the B. This is a movement of X molecules. Later on, there is a dynamic equilibrium setup. Okay, लेटर ऑन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा. सो नर्स्ट इन 1891
study the distribution of a several solute between different appropriate pairs of a solvent and generalizing given a known as Nernst distribution law. Okay, or simply distribution partition law. अभी statement क्या है देखो, if X is a distributed itself between the two immiscible A and B at constant temperature and X is in the same molecular state in the both the solvents, then the ratio of concentration of a solute in the two solvent remain constant. इसका क्या मीनिंग हुआ तो देखो एक बार फिर से देखो यहाँ पर x जो है ओके x it is a soluble in water, some of the so soluble in A, it is also soluble in B also. So what is that, A and B at a constant temperature and x is the same molecular state. okay, अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट मींस टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ओके, एंड x इज इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, दैट मींस उसको डिसोसिएशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, x एज इट इज ही है इन द बोथ द केसेस. ये कंडीशन है. अगर x सपोज डिस्ट्रीब्यूट होता डिसोसिएट हो जाता है तब नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगा. x रिमेन एज इट इज इन द बोथ द स्टेट, in the both the states they are the same. So at that time the ratio of concentration of solute in the two solvent, that means concentration of concentration of x in A, concentration of x in B is equals to constant. If the concentration of x in A is a Ca, okay, consider करेंगे concentration of x in A solution Ca होगा. अगर सपोज कॉन्सेंट्रेशन इन बी उसको कंसीडर करेंगे सी बी, तो अगर मैं दोनों का भी रेशियो लेता हूं दैट इज सी ए डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. यहां पर डी लिख सकते हैं आप. दिस इज नोन एज सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. दिस इज अ distribution Nernst distribution law. Okay, got it. Now next we will see the condition for validity of, okay, condition for validity of Nernst distribution law. So temperature should be constant, already I told you the temperature should be a constant. if अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो वहां पर नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगा. सोल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट इन द बोथ द सॉल्वेंट शुड बी सेम, ये कंडीशन होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या बोला गया है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. ओके, सॉल्यूशन शुड बी व्हाट, डाइल्यूटेड. हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आप वहां पर नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट, फॉर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन the Nernst distribution shows the deviation. Deviation means what? There is a changes when we are taking the concentrated solutions. When we are taking concentrated solutions. Now, the two solvents should be either immiscible or very slightly miscible. That means very slightly means what? थोड़ा बहुत तो soluble हो सकते हैं, but ज़्यादा soluble भी नहीं चाहिए. और immiscible रहेगा तो भी चलेगा, slightly miscible रहेगा तो भी चलेगा. This is a validity of Nernst distribution law. Multiple choice questions. In case of multiple choice question for this portion, the temperature may be asked, it will be a variable or a constant. What will be the factors? Next, we will see the some numericals. The first numerical is a solid is added. The solid is added to a mixture of a benzene and water. To a mixture of what? Benzene and water. After shaking well and allowing to start, 10 ml of benzene layer was found to contain 0.13 gram of solute and 100 ml of water layer contained 0.22 gram of solute. Calculate the value of distribution of coefficients. Okay, now we will see one by one. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर कौन सा है. तो इन्होंने क्या किया है, देखो ये बीकर है,
बीकर में दो सॉल्यूशंस लिए हैं इन्होंने। पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो रहेगा बेंजीन फॉर एग्जांपल, दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो है वाटर। दूसरा वाला सॉल्यूशन कौन सा है? वाटर है। ओके, ये दोनों भी इममिसिबल है, तो इसमें कुछ सोल्यूट्स उन्होंने ऐड कर दिए। अभी सोल्यूट्स ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट क्या है, 10 ml ऑफ बेंजीन लेयर। ओके, सो 10 ml बेंजीन लेयर के पास 0.13 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। 0.13 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इन बेंजीन कैसे पता करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, दैट इज मैं यहाँ पर Cb लिख देता हूँ। तो कैसा करेंगे, 0.13 जितना ग्राम प्रेजेंट है वो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 10। 0.13 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा आंसर इसका? 0.013 ग्राम पर ml, इतना हो गया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोला गया है कि 0.22 ग्राम इन 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। इन 100 ml वाटर में प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, इसका भी कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा आपको। CW इज इक्वल टू, तो इसका कैसे लिखेंगे? 0.22 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.0022 ग्राम per ml. Now here we are getting the value of Cb also and Cw also. We know that according to distribution law, according to law of distribution, okay, so what is Cb divided by Cw is equals to 0.013, this value, okay, is equals to 5.9. Final answer is what? 5.9. This is a what? Distribution coefficient. This is a distribution coefficient. Okay, unitless quantity because both are concentration, तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस टाइप से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? अब समझ में आया होगा सभी को, इस टाइप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? In the distribution of succinic acid, in the distribution of what succinic acid between ether and water, between ether and water at 15 degrees Celsius, at what? 15 degrees Celsius, 20 ml of ether layer contains 0.092 gram of acid. Find out the weight of acid present in the 50 ml of aqueous solution. ठीक है, यहाँ पर अभी देखो दो लिक्विड कौन से लिए हैं? एक लिया है ईथर और दूसरा लिया है वाटर। दो लिक्विड से, एक ईथर लिया है और एक वाटर लिया है। उसके बाद क्या बोला है? 20 ml ऑफ ईथर कंटेन, देखो यहाँ पर 20 ml ईथर के पास, 20 ml ईथर के पास 0.092 ग्राम एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं इन ईथर लेयर। Ce is equals to 0.092 डिवाइड बाय 20। इसको आप एज इट इज भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज रख देंगे। उसके बाद क्या बोला है? फाइंड आउट द एसिड प्रेजेंट इन द 50 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। दैट मींस आपको फॉर एग्जांपल x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन वाटर का वॉल्यूम कितना गिवन है? 50 ml इन 50 ml वाटर। तो इसका कैसा निकालेंगे फिर आप? कंसंट्रेशन x डिवाइड बाय 50। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन क्या है? यहाँ पर आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5.2। वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 5.2 गिवन है। तो वी नो दैट kd is equals to what? आप CW
डिवाइड बाय सी ई लिख सकते हो या फिर सी ई डिवाइड बाय सी डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल्स टू, नाउ वैल्यूज रखो यहाँ पर पूरी की पूरी। सपोज दिस इज अ 5.2 है, सी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, x बाय 50 है, x डिवाइड बाय 50 है। सीई की वैल्यू कितनी है, 0.092 डिवाइड बाय 20। सो आप पूरा अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पर x की जो फाइनल वैल्यू है 1.196 ग्राम मिलेगी। यहाँ पर आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 1.196 ग्राम ऑफ solute present in 50 ml of water. Okay, so this type of numerical may be asked. It is a very simple numericals. आप solve कर सकते हो इस type के numericals को। ठीक है, so in this lecture we study that is what is the Nernst distribution law, their validity of Nernst distribution law, and finally two numericals we are also discuss here. Such type of numericals may be asked, just value change हो सकती है वहां पर, या फिर अभी जिससे मैं यहाँ पर x निकालने के लिए बोला है तो आपको यहाँ पर x गिवन रहेगा तो आपको kd निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर इसका आपको मास निकालने के लिए बोल सकते हैं। सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर रुक जाते हैं। थैंक यू। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने उतने सॉल्व करो, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।